Alright, so today we'll be starting off with Sir Syed Ahmad Khan. So, who was Sir Syed Ahmad Khan? Four mark question. He was born in 1817 in Delhi and he came from a wealthy family, and his father gave him a high quality education. So, he was one of the reformers and Muslim thinkers as well. He was actually highly educated, skilled in many languages such as Arabic, Persian, फिर mathematics and medicine में he actually had great skills as well. जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1857 में, he was acting as a chief judge in Bijnor and he had saved the life of British women and children during the fighting as well. In return for his loyalty, the British gave him estate with large income, but he refused. His belief that armed uprising against British was pointless and made him unpopular to many Muslims. He was appointed Chief Justice in Muradabad and was later transferred to Ghazipur as well. फिर उनको एक अलीगढ़ में ट्रांसफर किया गया था, वेर ही एक्चुअली वर्कड अ लॉट, जैसे कि उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज भी वहां पे सेटअप किया था. In 1876, he retired from his work and to concentrate on running the college and devoting himself to improve the position of Muslims through education. He died on 27th March 1898. अब सर सैयद अहमद खान के बिलीव्स क्या थे? Sir Syed Ahmad Khan ke beliefs ye the that he felt that the poor status of Muslims was due to that they were treated as second class citizens by British and Hindus, and they had also taken some responsibilities themselves. सर सैयद अहमद खान को क्या लगता था कि जो आपकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है और ये सब हुई है, ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बेशक हमने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठानी है, बट हाथों से लड़ना, फिजिकली मीन से लड़ना, वेपन्स के थ्रू वॉर करना वॉज पॉइंटलेस. एंड ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ही थॉट कि अगर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना है, सो व्हाट शुड बी योर वेपन? उस हथियार का नाम है तालीम, एजुकेशन. द वेपन टू ड्राइव आउट ब्रिटिश मस्ट बी education. Sir Syed Ahmad felt that the poor status of Muslim was due to that they were treated as second class citizens by the British and Hindus, and they had to take some responsibilities themselves. Most Muslims thought that the British were no more than just invaders and they had nothing to do with them. Sir Syed Ahmad believed that Muslims had to accept that the British were their rulers and could only prove if they have a position approach towards them. They needed to accept the British idea and their education if they wanted to improve. Sir Syed wanted to see Muslims united and prospering in their social, economic, and religious fortune. He made this his life ambition and hence founded the Aligarh movement. जब वो गाजीपुर से ट्रांसफर हो गया था अलीगढ़, then he actually made this his mission कि Muslims education की तरफ काम करना है, ताकि मुस्लिम्स की स्ट्रेंथ नहीं बल्कि उनके सोशली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली और एजुकेशन वाइज उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए. तब वॉर फॉर डिपेंडेंस जैसी फिजिकल वॉर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो ये अलीगढ़ मूवमेंट थी क्या? 4 मार्क क्वेश्चन. इम्प्रूविंग रिलेशंस बिटवीन द ब्रिटिश एंड मुस्लिम्स कमिटीज, क्योंकि वी नो कि ब्रिटिश का जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स मुस्लिम, दैट हैड एंटायरली चेंज्ड. बाय अब कैसे? बाय रिमूविंग ब्रिटिश डाउट्स अबाउट मुस्लिम लॉयल्टी एंड मुस्लिम डाउट्स अबाउट द ब्रिटिश इंटेंशंस. Improving the social and economic position of Muslims by encouraging them to receive Western education and take up posts in the civil service and army. Increase the political awareness as well, ताकि मुस्लिम्स को अभी सारी थ्रेट्स का पता लग जाए जो हिंदू पॉलिसी मेकर्स बनाते हैं. एटलीस्ट मुस्लिम्स के पास इतना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस हो कि वो यहाँ पे पॉलिसीज बनने से रोक सकें जो हिंदूज बनाएंगे, क्योंकि हिंदूज तो फुल कॉपरेशन कर रहे थे ब्रिटिश के साथ. रिलेशंस इंप्रूव करने, लॉयल्टी प्रूव करनी, इकोनॉमिक पोजीशन और पॉलिटिकल अवेयरनेस दिलवाना वाज अलीगढ़ मूवमेंट. तो वाई, अब क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड सर सैयद अहमद खान वर्क हार्ड एट रिवाइविंग मुस्लिम्स आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? क्या जरूरत थी कि ये सारे रिलेशंस रिवाइव करने थे और ये अलीगढ़ मूवमेंट जैसे स्टार्ट करनी? नंबर वन रीजन वाज टू इंप्रूव द एंग्लो मुस्लिम रिलेशन. एंग्लो मुस्लिम रिलेशंस क्या है कि ब्रिटिश का सब कॉन्टिनेंट में जो पूरी कम्युनिटी है, एक मुस्लिम्स के इवन इफ माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है, वो ब्रिटिश के साथ रिलेशंस इंप्रूव किए जाए. एंड ही फेल्ट दैट द ब्रिटिश वर फार टू स्केप्टिकल ऑफ मुस्लिम्स एंड बिलीव्ड देम टू बी को रेजिस्टर्स इन द इंडियन म्यूटिनी. ब्रिटिश को क्योंकि यही लगता था ना कि जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस दी है वो मुस्लिम्स ने दी है इन द इंडियन म्यूटिनी. इंडियन म्यूटिनी क्या था? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. हैंस सर सैयद अहमद खान ने इसके अगेंस्ट एक्शन लेने का सोचा. Second reason ये था to encourage the Muslim towards Western education, because there were many Muslim ulemas and clergy who were up against British system as compared to Muslims Darazga, and thought the British lifestyle and culture would be introduced in such schools, taking Muslims away from their religion. Sir Syed believed that the only way for Muslims to gain any political or economic advantage was to adopt the British educational system, as they were providing knowledge of the world's scientists and therefore knew better
than to indulge religion into science. He thought Muslims could benefit from the medical and engineering subjects and sought to encourage the Muslims to choose this path as well. तीसरा रीजन क्या था? पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, बिकॉज फॉलोइंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अब हिंदूज जो थे, पहली बात तो मुस्लिम्स हैड लॉस्ट ऑल ऑफ देयर पॉलिटिकल पावर एंड दे वर लिटरली एट द बॉटम ऑफ द लीडरशिप हायरार्की, डिप्रेस्ड, डेसोलेट। फर्दर मोर, वो कोई प्रोपागंडाज ही नहीं समझ पा रहे थे जो हिंदूज की तरफ से मिल रहे थे, ना कोई हार्श ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रिटिश। सर सैयद्स की फोकस thereby became encouragement of political sciences for who? यंगर जनरेशन, जवान माइंडसेट्स, जो यूथ होगी, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके इन द पॉलिटिकल अरीना। सो व्हाई डिड सर सैयद बिलीव इट वाज यूजलेस टू अपोज द ब्रिटिश? सर सैयद अहमद खान ये क्यों समझते थे, अब ये 7 मार्क आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर ले। व्हाई डिड ही थॉट कि ब्रिटिश के खिलाफ होना वाज यूजलेस? पहली बात तो मुस्लिम्स का वीक सोशल स्टेटस है, और मुस्लिम्स को इतना ज्यादा ब्लेम किया गया, इकोनॉमिक क्राइसिस में जाते जा रहे हैं, जॉब्स खत्म हो रही है, मनी है नहीं, स्लम्स में रहना शुरू हो गए, और मुगल रूल भी वापस तो आने नहीं वाला अब। ठीक है, तो अपोज करना ब्रिटिश को गलत है। ठीक है, व्हाई नॉट यूज देयर एजुकेशन सिस्टम एंड कैरी देमसेल्व्स इनटू द ब्रिटिश कम्युनिटी, बिकम अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी एज वेल। और जब एक दफा पार्ट हो जाए, हाँ, तब बेशक आप ब्रिटिश को ड्राइव आउट कर दो, लेकिन अभी इस टाइम पे इट वाज यूजलेस टू अपोज द ब्रिटिश। सेकेंडली, मुस्लिम्स का एक वीक पॉलिटिकल स्टेटस था, क्योंकि आपका जब बहादुर शाह जफर, एक लास्ट मुगल एम्परर, भी बैनिश हो चुके हैं, मुस्लिम रूल had fairly ended, and the British saw the Muslims largely as a threat and burden on the society, therefore not giving them a chance to attain any political position as well. So Sir Syed felt that since Muslims no more had any political stance, they needed to rethink their strategies of opposition, और अब एफर्ट करनी है पॉलिटिक्स में। तीसरी बात, आपका मिलिट्री स्टेटस भी वेक है। सारे जो सिपॉयज और मुस्लिम थे उनको कितने ज्यादा प्रिजनर्स में डाल दिए थे, प्रिजन में डाल दिया था, वर्बल असॉल्ट हुआ, आर्म्स कैरी करने से मना कर दिया था, डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया था, और बहुत से आपके मिलिट्री सिपॉयज और हर तरह से वीक हो गई थी। वो जो याद है, वर्नाक्युलर एक्ट्स भी आए थे एंड ऑल ऑफ दैट। तो व्हाई डिड सर, ये तो पेपर में आ चुके हैं, ये पेपर्स में तो बहुत दफा है, दैट व्हाई डिड सर सैयद अहमद खान विश टू डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग विद द ब्रिटिश फॉलोइंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? क्यों? नंबर वन, ओपन द आईज ऑफ ब्रिटिश टुवर्ड्स मुस्लिम लॉयल्टी। ब्रिटिश को एहसास दिलाना दैट मुस्लिम लॉयल थे, क्योंकि एक्चुअल कॉजेज जो इंडियन म्यूटिनी के थे, वो सिर्फ मुस्लिम्स को इंटायरली ब्लेम नहीं करना चाहिए। इसलिए ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा हुई थी, एंड फर्स्टली अपराइजिंग्स जो थी, रिटेलिएशन हुई थी, वो ओवरऑल इंडियंस की तरफ से थी, सिपॉयज की तरफ से, नॉट जस्ट मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम सिपॉयज के बजाय मुस्लिम कम्युनिटी पूरी जो है आपके पास, वो अफेक्ट हो रही है। यूजलेस टू अपोज ब्रिटिश, दूसरा रीजन क्या है? यूजलेस टू अपोज ब्रिटिश, जो हमने यहाँ पढ़ा, इसलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी, क्योंकि खिलाफ तो होना यूजलेस है। And number three reason was that Sir Syed Ahmad Khan wanted the Muslims to warm up to British provided opportunities. He wanted to improve their social and economic conditions by taking up posts in the civil service and the army. If they didn't do these things, then they would see other prosper instead. And if they were to improve the poor status, then the Muslims had to accept more British ideas and take advantage of British education. तो 4 मार्क क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्क्राइब हाउ सर सैयद अहमद खान इम्प्रूव द रिलेशंस बिटवीन द ब्रिटिश एंड मुस्लिम कम्युनिटीज। क्या क्या स्टेप्स लिए थे? पहली बात तो हायर क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, पहली बात तो जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की मुस्लिम पे डाल दी थी, उसका फॉल्स व्यू अब खत्म करना था, उसको करेक्ट करना था, पहली बात तो। दूसरी बात ये थी कि बहुत से एरियाज हैं, जैसे कि साइंस है, टेक्नोलॉजी है, दैट शुड बी एम्ब्रेस्ड बाय द मुस्लिम कम्युनिटी। तो सर सैयद अहमद खान का यही था कि अब मुस्लिम कम्युनिटी को कहाँ पे लाना है? टुवर्ड्स साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सो दे कैन इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द masses. सो 4 मार्क क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ सर सैयद कन्विंस द ब्रिटिश मुस्लिम लॉयल्टी। अब ब्रिटिश को मुस्लिम की लॉयल्टी कैसे प्रूव की? पहला पॉइंट, ही रोट अ पैम्फलेट जिसको था लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया। मोहम्मदन्स कौन है? मुस्लिम्स। उस पैम्फलेट का नाम ही द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, एंड इन दिस वर्क he defended Muslims and listed the name of those Muslims who remained loyal to the British during the uprising. उसमें उन्होंने नाम लिखे कि ये मुस्लिम्स आपके ही ऑफिस में, आपके साथ ही, आप ही को सर्व किया था इन्होंने, और वो लॉयल है। Number two, in order to achieve that British were fully wrong to blame the Muslim for the uprising, he wrote another pamphlet, ऐसे ऑन द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। उन्होंने पूरा एक ऐसे लिख दिया। पहला उन्होंने पैम्फलेट लिखा जिसमें बताया था
लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, मुस्लिम लॉयल है। दूसरा पैम्फलेट लिखा कि असल इंडियन रिवॉल्ट के कॉजेस थे क्या, जिसके अंदर ही पॉइंटेड द रीजंस फॉर द अपराइजिंग एज वेल, और बताया कि द ब्रिटिश वर एक्चुअली अनएबल टू अंडरस्टैंड देयर ओन इंडियंस। और वो पैम्फलेट इतना ज्यादा सर्कुलेट हुआ था, उसकी कॉपीज इंग्लैंड भी सेंड हुई थी, वेयर इट वाज एक्चुअली स्टडीड केयरफुली, एंड मैनी ब्रिटिश थॉट कि सर सैयद अहमद खान उनको ब्लेम कर रहे हैं फॉर द अपराइजिंग। Number three, he also cleared the misunderstanding that the British called that the Muslim called British नदारत। अब नदारत का मतलब कोई इंसल्ट नहीं होता, इट मीन्स बेसिकली नासिर, जिसका मतलब होता है हेल्पर। ये भी उन्होंने क्लियर किया था। नंबर फोर, सर सैयद वॉज अवेयर दैट ब्रिटिश न्यू वेरी लिटिल अबाउट इस्लाम, हेंस ही हैड अ विजिट टू इंग्लैंड। और उन्होंने एक लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट के ऊपर एक बुक लिखी थी, वेयर ही ऑल्सो रोट हिज ओन वर्क करेक्टिंग द एरर्स एज वेल। तो ये ABCD, ये चार स्टेप्स जो हैं, ये 4 मार्क क्वेश्चन में है, दैट हाउ डिड सर सैयद अहमद खान कन्विंस द ब्रिटिश अबाउट मुस्लिम लॉयल्टी। नाउ व्हाट वाज द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, अगर सवाल आता है, वैसे तो बुक पे कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये पैम्फलेट थी क्या, बस बताया हुआ है कि ये लिखी गई थी। द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया वाज एन आर्टिकल पब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान। He wrote it to remove the misunderstandings between the British and Muslims, and it described different services that the Muslims had rendered to the British. फिर एक और पैम्फलेट जो थी, व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट के अंदर फिर क्या होगा, जो सारे रीजंस थे, मिसकंसेप्शंस थी, उनको क्लियर किया था कि ये पॉलिसी थी जो कि that led to the uprising as well. He argued that the revolt was a widespread response to the failure of the British to admit Indians into legislative council। सब reasons बताए कि आपने इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं आने दिया, आपने उनको ऐसी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनाया, पॉलिसीज में सिविल सर्विसेज का नहीं बनाया। दैट इज वाई ये भी कुछ कॉजेज थे इंडियन रिवॉल्ट की, कि इंडियंस ने इतना ज्यादा क्यों रेजिस्टेंस दिखाई थी। हाउ डिड सर सैयद कन्विंस द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश अटेंशन। आप ब्रिटिश को तो कन्विंस कर रहे हो कि मुस्लिम लॉयल थे, सच्चे थे, आपके खिलाफ नहीं थे, क्या आपने मुस्लिम्स को कन्विंस कर दिया कि ब्रिटिश बुरे नहीं है। उनकी अब मुस्लिम्स के तो दिमाग में ब्रिटिश की इंटेंशंस इतनी अच्छी तो नहीं थी, अब वो कैसे क्लियर की। सर सैयद वाज अवेयर दैट मुस्लिम इन इंडिया न्यू वेरी लिटिल अबाउट क्रिश्चियनिटी। ही ट्राइड टू ओवरकम दिस बाय राइटिंग तबय्युनुल कलाम। मुस्लिम्स के लिए अब उन्होंने किताब लिखी तबय्युनुल कलाम, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सी जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के दरमियान जितनी सिमिलैरिटीज थी, दे वर ऑल मेंशन्ड in the book known as तबय्युनुल कलाम। दैट इज हाउ मुस्लिम्स और मुस्लिम्स के ज़हनों में ब्रिटिश के खिलाफ भी बातें अब कम हो गई थी, एंड दे आल्सो हैड क्लियर इंटेंशंस टुवर्ड द ब्रिटिश एज वेल। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सर सैयद अहमद का वर्क, उनकी एफर्ट्स को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट एफर्ट हमने कर लिया, कौन सी थी, द फर्स्ट एफर्ट इज अबाउट इम्प्रूविंग द रिलेशंस। आई होप ये सारे क्लियर हो गए, 4 मार्क और 7 मार्क। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द पार्ट 2, encouragement ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। अब वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ इनको कैसे मुस्लिम्स को इनकरेज किया था सर सैयद अहमद खान ने, वो देखते हैं। वेल, ही ऑलवेज यूज टू इंकरेज द ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। आज आप जो मेरे से पढ़ रहे हैं कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम, ये भी कौन लाया था, सर सैयद अहमद खान ब्रॉट कैम्ब्रिज। ठीक है, आइदर यू कैन थैंक हिम और यू कैन बी एंग्री एट हिम एज वेल। ठीक है, so he believed that the acceptance of Western scientific and technological idea was necessary, as this could only make Muslim advance in the world of science. He related this with Holy Quran, कि Holy Quran भी कहते हैं कि modern scientific belief, modern sciences को discover करें। ठीक है, and all of the creations, ठीक है, जैसे बहुत सी सूरह फसीला, सूरह शूरा में सब में described है that God has creations beyond the universe, beyond galaxies, beyond sun and moon, beyond any वो उनको subjects के लिए क्या नाम होता था, ठीक है, देर इज अ लॉट ऑफ साइंस बियॉन्ड दैट, मैं उस वर्ड का भूल गया। He founded schools in Muradabad and Ghazipur to initiate primary education for younger Muslims as well. Then he established Scientific Society at Ghazipur। अब ये सारे क्या listed हैं? The ways in which he encouraged Western education. Describe how Sir Syed encouraged the growth of Western education. उसके बाद ही विजिटेड इंग्लैंड, जहाँ पे वो जब वापस आए, ही फाउंडेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एज वेल, बिकॉज ही सॉ द क्वालिटी ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन जो वो प्रोवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पे बहुत से सब्जेक्ट्स भी लाए, मैथमेटिक्स, मॉडर्न साइंस एंड एग्रीकल्चरल साइंस वाज ब्रॉड। ये वाले सब्जेक्ट पे यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़ में भी आए थे। ही ऑल्सो फाउंडेड द मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर सारे प्रॉब्लम्स ऑफ मुस्लिम डिस्कस हुआ करते थे, और एफर्ट्स जो थे मुस्लिम एजुकेशन के,
They also served the double purpose. It actually helped the Muslims to get good jobs and raised their status in the society as well. It also helped in removing the mistrust between the British and the Muslim. Athar al-Sanadid was another pamphlet, एक archaeological masterpiece था, which provided wealth of information on countless historical monuments in Delhi, 800 long Muslim rule, Mughal rule के बारे में, दिल्ली की, इंडिया की, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री, ये सारी आपको जो हिस्टोरिकल एजुकेशन मिलती थी, दैट वाज फ्रॉम अथरल सनादीद एज वेल। इसके अंदर बहुत सी कुछ आर्कियोलॉजिकल मास्टरपीसेस, आर्कियोलॉजी बहुत ज़्यादा इसमें बात हुई थी आपकी। व्हाट वाज द सब कॉन्टिनेंट बिफोर, हाउ वर दी सिविलाइजेशंस, कौन सी सिविलाइजेशन हिंदू और मुस्लिम से पहले रह चुकी हैं, जो आप अपनी क्लास 6, 7, 8 की हिस्ट्री में पढ़ा करते थे ना, वो अतरल सनादीद थी। द अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ गैजेट वाज आल्सो एन ऑर्गन ऑफ द साइंटिफिक सोसाइटी, उसी का एक पार्ट था। और ये गैजेट क्या होता है, एक मैगजीन निकलता था। फिर तहजीबुल अखलाक, इट ऑल्सो सक्सीडेड इन मेकिंग पीपल रियलाइज द वैल्यू ऑफ मॉडर्न नॉलेज। इस तहजीबुल अखलाक ने और तबय्युनुल कलाम ने बहुत ज़्यादा हेल्प क्यों की थी, कि मुस्लिम के इंटेंशन क्लियर करने थे कि ब्रिटिश भी अच्छे हैं, उनकी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम भी हमारे लिए हेल्पफुल है, एंड दिस वुड ऑल्सो हेल्प इन मुस्लिम सोशल एंड पॉलिटिकल थिंकिंग ऑफ मुस्लिम्स एज वेल। So if you have a question that what was the scientific society at Ghazipur, it was founded at the residence of Sir Syed Ahmad Khan in Ghazipur। ठीक है, यहाँ पे बहुत से उनके ब्रिटिश फ्रेंड्स भी प्रेजेंट थे इन द इक्वेशन, एंड इन मैनी मीटिंग्स वहाँ पे यूनानिमसली अप्रूव होते थे बाय लॉज फॉर द सोसाइटीज। और 109 पीपल ने मेंबरशिप वहाँ पे ली थी, आउट ऑफ विच 28 मेंबर्स ब्रिटिश के थे, 34 हिंदूज थे एंड 47 मुस्लिम्स थे। मेन एम्स क्या थे ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांसलेशन ऑफ एजुकेशन एंड टेक्निकल लिटरेचर फ्रॉम इंग्लिश एंड यूरोपियन लैंग्वेज टू इंडियन लैंग्वेजेस। सबसे अच्छी बात कि साइंटिफिक सोसाइटी जो गैजेट निकालती थी, इनका क्या था कि आपको जो इंग्लिश में, यूरोपियन लैंग्वेज में, फ्रेंच और हर लैंग्वेज में जो आपको लिटरेचर मिलता है उसको ट्रांसलेट करने किसमें, इंडियन लैंग्वेजेस में, संस्कृत में, अरेबिक में। Publication of rarely available books by Indian writers will not have any business with religious books. 27 standard works were translated, और हिस्ट्री ऑफ पर्शिया हो गई, केमिस्ट्री, मिलर्स टेस्टिमोनी, लाइफ ऑफ वर्क ऑफ सर सैयद अहमद खान, लिस्बिक्स एग्रीकल्चर, ये सारी बुक्स हैं, उनके नाम जो जो बहुत मेन मेन है और आज तक मिलती हैं ये। 17 बुक्स ऑफ मुंशी ज़काउल्लाह विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी एज वेल। तो फिर ये अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट क्या था, ये जो अलीगढ़ से एक मैगजीन निकलता था, इट वाज अ जॉइंट माउथ पीस ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी एंड द अलीगढ़ इंस्टीट्यूट एज वेल। इन दोनों का ये जॉइंट वर्क था। ये पब्लिश होता था इन उर्दू एज वेल एंड ऑल्सो इन इंग्लिश। और इस गैजेट की टीम में कंप्राइज थे सर सैयद अहमद खान जो ऑनरी एडिटर थे, फिर मुंशी मोहम्मद यार खान जो एडिटर थे, मुंशी चौखन लाल ट्रांसलेटर, और ये ज़्यादा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यू शुड नो कि ये जो गैजेट है इसने किया क्या। इट एक्चुअली प्लेड अ की रोल टू मोबिलाइज द पीपल एंड कन्वे द मैसेज ऑफ द सोसाइटी एज वेल। फिर हम बात करते हैं व्हाट वाज द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, ये सारे 4 मार्क क्वेश्चंस, ठीक है। It was set up in 1875 on May 24th in Aligarh on the pattern of English public school. The British refused to allow it because वो affiliate था with a Muslim university outside British territory. तो उन्होंने कहा था कि he couldn't become the Muslim university that Sir Syed wanted. The school offered Western, some Islamic and also Indian education. This school became a symbol for Muslim unity। बहुत अर्ली एज से बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ से कंबाइन बैठते थे, और बहुत से फ्यूचर जो आपके पाकिस्तानी लीडर्स हैं जैसे कि लियाकत अली खान और फिर अयूब खान, लियाकत अली खान इन 1946, अयूब खान इन 1960s, ये दोनों बड़े बड़े लीडर भी कहाँ से पढ़े थे, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल से। What was the Mohammedan Educational Conference? Even after the creation of Mohammedan Anglo-Oriental College of Aligarh, Sir Syed Ahmad Khan was actually dissatisfied with the progress of Muslim in the field of education। अभी भी उनको पूरी तरह तसल्ली नहीं थे, इसलिए he wanted to produce a congress। तो All India Mohammedan Educational Congress बनी थी और the forum of Muslim intelligentsia to develop awareness। इसको lead Muslims कर रहे थे जो कि develop करेंगे awareness क्या, of education among the Muslims। लेटर ऑन द नेम ऑफ कांग्रेस वाज चेंज टू कॉन्फ्रेंस। तो अब ये बन गई थी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस से इसका नाम कॉन्फ्रेंस हो गया था। मुस्लिम डेलीगेट्स ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया से आते थे, और यहाँ पे दे यूज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मुस्लिम कि वो हायर एजुकेशन में ले सके, स्कॉलरशिप, एग्जामिनेशंस, कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस लाए वो यहाँ पे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की क्वालिटी कैसे बेहतर करनी, क्योंकि अब तो देखो इंस्टीट्यूशन सर सैयद अहमद खान ने बना दिए थे। ये मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हर साल डिस्कस करते थे, डेलीगेट्स आते थे कि अब इनकी मजीद हम क्वालिटी
स्ट्रक्चर, इसको कैसे मजीद से मजीद बेहतर कर सकते हैं। Significance इस कॉन्फ्रेंस की क्या थी? That it could be evaluated by the fact that the political party of Muslims under which Pakistan came into being was also founded in the annual meeting of Mohammedan Educational Conference in 1906, जहाँ पे आपकी पाकिस्तान मूवमेंट का स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे मुस्लिम लीग स्टैब्लिश हुई थी, जिस कॉन्फ्रेंस में उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम मुस्लिम लीग रखा था, वो क्या थी? मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, एक तो हमने देख लिया रिलेशंस बिटवीन मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश को हल किया। पार्ट बी में हमने देखा कि वेस्टर्न एजुकेशन को लाए। पार्ट सी में अब देखेंगे पॉलिटिकल अवेयरनेस के ऊपर, हाउ डिड ही वर्क ऑन द पॉलिटिकल अवेयरनेस। Describe the political services for the Muslim. Now we know after the War of Independence, his position was not less than of a greater political reform of a Muslim. He was fully aware of the fact that the formation of national government in a multinational country like India was neither feasible nor possible. अगर हुई भी तो वो ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफ हिंदूज ही होगी और मुस्लिम्स गुलाम रहेंगे। हेंस उन्होंने कुछ सर्विसेज का शुरू किया, क्योंकि ही नहीं हो कि इनकी पॉलिटिकल स्टेटस कम है। बेहतर भी हुआ अगर इंडियंस का, तो इंडियंस में भी अगर किसी का बेहतर होगा वो हिंदूज का ही होगा, और तब भी मुस्लिम्स पीछे रह जाएंगे। What he did was he advised the Muslims not to join Indian Congress. He urged the Muslims to acquire knowledge first और पॉलिटिकल्स में हिस्सा लें। स्टे अवे फ्रॉम डेमोक्रेसी, क्योंकि मुस्लिम्स माइनॉरिटी थे, अगर आप डेमोक्रेसी का हिस्सा बन गए, पीपल थॉट, अब तो ठीक है हम कहते हैं डेमोक्रेसी इज अ गुड थिंग। पहले क्या था, मुस्लिम्स को कहा कि स्टे अवे फ्रॉम डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि तुम लोग कम हो। डेमोक्रेसी है जमहूरियत, आवाम की सुनना। आवाम में ज्यादा कौन है? हिंदूज। तो दैट इज व्हाई मुस्लिम्स हैड टू स्टे अवे फ्रॉम डेमोक्रेसी, एज द मुस्लिम्स वर इन माइनॉरिटीज इन इंडिया, एंड एवरी इलेक्शन वुड ऑब्वियसली वॉन्ट बाय हिंदूज, क्योंकि वोट ही उनको मिलेंगे हिंदूज को। आप हो ही माइनॉरिटी में, तो ऐसी डेमोक्रेसी का क्या फायदा जहां आप इतने कम हो खुद। ही सजेस्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, और ये तो चलता रहा 1935 तक चलता रहा कि ये मसला, कि मुस्लिम्स को कब सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक भी ये मसला चलता रहा था। He opposed the system of competitive examinations for government posts as well, because Muslims were much behind in the Hindus in education. He also opposed the replacement of Urdu and Hindi as a court and official language. He also gave speeches in various arenas of education to encourage the Muslims of the subcontinent to take part in political sciences. वो कहते थे, वो तो अपोज करते थे, यार उर्दू और हिंदी बस कर दो फॉलो करना, इंग्लिश पे आओ। So what regions led to change of Sir Syed's view from one nation to two nation theory? Very important. जैसे वो सवाल आता है ना, why did Sir Syed Ahmad Khan gave the two nation theory? क्या वजह थी उसकी? क्यों वो वन नेशन? पहले वो कहते थे वन नेशन वन नेशन, ठीक है, हिंदूज के साथ रहो, ब्रिटिश को बाहर ना निकालो, ब्रिटिश ही बचाएंगे, ब्रिटिश अगर बाहर चले गए तो हिंदूज नहीं छोड़ेंगे कहीं का, इनके साथ मिलकर रहो, कम्युनिटी बनाओ। बट नाउ ही शिफ्टेड टू द पॉइंट ऑफ टू नेशन थ्योरी। क्यों? पहली बात तो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। Urdu was the national language for many years, but Hindus used to oppose it in Urdu Hindi controversy. This provoked Sir Syed to make his two nation theory, to tell that Urdu had place in the heart of Muslims and was supported by them and can't be replaced by Hindu, which was the language of all Hindus. He thought that Muslims and Hindu couldn't work together क्योंकि हिंदी मुस्लिम्स के साथ नहीं सही थी, and they always wanted to convey in Urdu. उर्दू की तो एक खास जगह है मुसलमान के दिलों में। दूसरी रीजन थी डेमोक्रेटिक सिस्टम। Another reason was that parliamentary system was not supported by Sir Syed because Hindus were in more number. मैंने वही कहा ना कि आपका parliamentary system was based on what? डेमोक्रेसी। ठीक है। अब डेमोक्रेसी का क्या फायदा व्हेन हिंदूज वर मोर नंबर एंड दे ऑलवेज यूज्ड टू आउट नंबर द मुस्लिम्स? तो सर सैयद अपोज दैट एज वेल। ही रियलाइज दैट सेपरेट इलेक्टोरेट वाज अ पॉसिबल सॉल्यूशन, लेकिन वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल नहीं रहे थे। हेंस ही मेड दिस डिसीजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड फॉर इलेक्शंस, जो कि सिर्फ मुस्लिम के लिए सही हो। तीसरा रीजन वाज द कंपेटिटिव एग्जामिनेशन। टू नेशन थ्योरी इसलिए भी चाहिए थी क्योंकि इसमें भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन भी में भी मुस्लिम और हिंदूज में बहुत फर्क था। क्यों फर्क था? बिकॉज बहुत सी अच्छी पोस्ट हिंदू के पास थी, हिंदू को एक्सपीरियंस था, प्रैक्टिकल भी थे, नॉलेज भी था, एग्जामिनेशन सारे वही बार बार पास कर जाते थे। तो कंपैरेटिव एग्जामिनेशन आपने रखा, ठीक है मुसलमान पढ़ेंगे, लेकिन यार हिंदूज और मुस्लिम का एक ही पेपर है, जिनको एक्सपीरियंस है वो तो पास होते जा रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो, he thought over here as well that Muslims and Hindus were not working for the Muslims at that time, so the two nation theory was important here as well.
अब आप इस 7 मार्क के क्वेश्चन में देखो, हर रीजन के एंड में कैसे वो एक एंडिंग लाइन लिखी हुई है। ऑलवेज फॉलो दिस एंडिंग लाइन। मैं चेक करते हुए बहुत से स्टूडेंट्स को, आप लोगों को बता रहा होता हूँ, एक लाइन छोटी सी ऐड करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे मेंशन है कि वो नहीं साथ कर सकते, दैट इज वाई ये आई, दैट इज वाई टू नेशन थ्योरी वाज प्रोड्यूस्ड। ठीक है ये, व्हाट वाज दिस टू नेशन थ्योरी? Sir Syed always believed that since the Muslims and Hindus live in the same continent, they need to work together to attain political and economic unity. But due to certain issues occurring on part of the Hindus to ensure that the Muslims never succeeded, Sir Syed's views changed and he declared Muslims and Hindus as two separate entities. The Congress was Hindu dominated and strived to only benefit themselves and left Muslim interest out in the land. Also, this touched on competitive examination for government appointments, which the Muslims couldn't compete in due to their lack of educational opportunities. Similarly, Urdu Hindi controversy led to the final blow in which Sir Syed believed that Hindus were not at all inclined towards Muslim progress, hence, two nation theory आ गई थी। What was the Hindi-Urdu controversy? इसमें क्या है? Hindu-Urdu controversy was started in 1867. Hindus demanded Hindi to be made official language, but Muslim कहते थे कि उर्दू चाहिए। ये थी हिंदू, वो चाहते थे हिंदू हो, मुस्लिम चाहते थे उर्दू हो। ये हिंदी-Urdu controversy थी because Sir Syed also supported Urdu in this thing, and Muslims opposed this and supported Urdu because it was a sign of unity of Muslims in India. ठीक है? Hence, two nation theory भी हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी से आई थी बिकॉज दिस प्रूव्ड दैट मुस्लिम्स एंड हिंदूज वर टू सेपरेट काइंड्स ऑफ पीपल। अब हम थोड़ा सा पार्ट 4 की तरफ आते हैं, दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान की क्या इम्पोर्टेंस है टू डेट? वेल, सर सैयद अहमद खान is also known as the father of Pakistan movement. Why is Sir Syed Ahmad Khan known as the father of Pakistan? We have three possible reasons for that you can add in a 7 mark question. Why is he known as the founder or father of Pakistan movement? Number one, educational enlightenment. क्योंकि अगर से सैयद अहमद खान ने ऐसे प्लान्स इनिशिएट ना किए होते फॉर कल्टिवेटिंग द मुस्लिम मैसेस बोथ इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स, क्यों ही कभी मुस्लिम्स हार्ड वर्क की तरफ जाते, क्यों ही पार्टियां बनती, क्यों बाद में मुस्लिम लीग क्यों बनी? ऑल बिकॉज ऑफ सर सैयद अहमद खान। आपकी मुस्लिम्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ऐसा ऐसा एजुकेटेड होते जा रहे थे, नॉलेज और स्किल्स आ रहे थे, एंड दे वर एक्चुअली नाउ गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन अंडर द Cambridge style, which actually made them aware of the weak knowledge base they had while the world had gone far ahead. इनको अब जाके तो समझ आई थी मुस्लिम्स को बिकॉज ऑफ सर सैयद अहमद खान की भाई दुनिया बहुत आगे चली गई है एंड दे हैव टू नाउ लिव। Moreover, favorable atmosphere for future delegations. He also worked tirelessly to improve the relations between the British and Muslims so that British might be convinced of Muslim integrity and trust the Muslims once again। और उन्होंने किस किस तरह वो रिलेशंस ठीक किए तो वो तो आपको पता है। और इन रिलेशंस ठीक करने का फायदा कहाँ होता कि एक दिन अगर रिलेशंस ठीक हो गए, ब्रिटिश आपको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन भी देंगे और इलेक्टोरेट्स भी देंगे ताकि प्रॉपर डेमोक्रेसी कैन बी फॉलोड। इसलिए बाद में मॉर्लेमेंटो मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जब आई थी, वो भी क्यों आई थी? बिकॉज ऑफ सर सैयद अहमद खान। क्योंकि अब उन्होंने मुस्लिम्स को, ऑब्वियसली मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो नहीं दिलवाया सर सैयद अहमद खान ने, लेकिन उन्होंने मुस्लिम्स को ब्रिटिश के नज़र में इतना नॉलेजेबल, स्किलफुल, प्रैक्टिकल, पॉलिटिकल बना दिया था कि कहीं ना कहीं एटलीस्ट वो डिमांड को नज़र में ज़रूर रखते थे ब्रिटिश। पहले तो ये भी नहीं था, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो 1/3 देते थे, कभी 1/4 देते थे, कभी देते तो थे ना। क्रेडिट गोज टू सर सैयद फॉर दैट। तीसरा रीजन, वाई इज ही नोन एज द फादर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट? बिकॉज ऑफ द टू नेशन थ्योरी। This was one of the most important of Sir Syed's efforts was to voice out that the fact that Muslims cannot remain dependent on the Hindu majority and their representative political party, मतलब कांग्रेस के भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए because Muslim minority थे। Hence, he laid down the foundation for the liberation of Muslims under the command of able Muslim leaders who would lead them out of separation ताकि एक separate homeland पाकिस्तान बन सके। डिस्क्राइब सर सैयद इम्पोर्टेंस एट फादर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, यही चीज आ जाएगी 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत छोटा करके, ठीक है। ऑलराइट, अब आप लोगों को असाइनमेंट देते हैं। सो वी हैव पॉसिबल 14 मार्क क्वेश्चन और उसका ये पूरा यहाँ पे ना आंसर लिखा हुआ है, ठीक है।
ये एंड पे कंक्लूजन भी दिया हुआ है। और ये सारे कोई एक देख लेते हैं, ये वाला कौन सा सॉल्व हुआ है। अ, फिर सवाल का आंसर दिया हुआ है, एक सेकंड। मेरे ख्याल से हाँ ये है, इसका आंसर लिखा हुआ है। नहीं, यार ये किसका आंसर लिखा हुआ है पता नहीं, मैं भूल गया हूँ ये। अच्छा चलो इस आंसर को पढ़ते हैं, सर फिर ये आप लोगों ऊपर को बता क्वेश्चन दें। लिखा हुआ था ना। नहीं, क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पे 1 2 3 4 5 हाँ। 14 मार्क है। मुझे समझ नहीं आ रही ये वाला आंसर किसका है। पढ़ लेते हैं, पहले आंसर पढ़ लेते हैं, ठीक है। He wrote a number of books following the War of Independence in which he tried to show the British that the Muslims only partly to blame and there were many supporters, Mohammedans of India League, cause of Indian revolts। नदारत क्लियर किया, तबय्युन कलाम लिखी, तहजीबुल अखलाक लिखी, गाजीपुर स्कूल्स खोले, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ गाजीपुर, मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। However, he also carried out other diverse efforts such as political में separate seats electorates, democratic rights, democracy। Conclusion क्या है? Sir Syed Ahmad Khan was the first person to express this point of view and it became known as the two nation theory, separate homeland। Conclusion पता नहीं, ये मेरे ख्याल से मैं सवाल भूल गया हूँ उसका। खैर, आप सब एक एक अब यहाँ से ले लो, मैं अब डिवाइड कर देता हूँ, ध्यान से सुनने सारे। ओके। Was the attempt to achieve a better understanding with the British the most important contribution that Sir Syed Ahmad Khan made to the Muslim cause during the 19th century? ये सॉल्व करेगा मूसा, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? पार्ट ए, कि ब्रिटिश मुस्लिम अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई थी। हाउएवर उसके बाद आप एजुकेशन रिफॉर्म्स भी डालो, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी डाल देना, और कंक्लूजन में अब आपकी मर्जी है, आप पॉलिटिकल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहना चाहते हो या इसी अंडरस्टैंडिंग वाले को, ठीक है। क्योंकि सर सैयद अहमद खान के एफर्ट्स के तीन हिस्से हैं, याद रखना। अंडरस्टैंडिंग बिटवीन विद ब्रिटिश, एजुकेशन वेस्टर्न, और पॉलिटिकल, तीन हिस्से हैं, याद रखें। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है? Was the two nation theory the most important contribution of Sir Syed Ahmad Khan? Explain your answer। हम्म, इसको पे ये हो रही है। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, was the development of Western education system the most important contribution of Sir Syed Ahmad Khan in developing the cause of Muslims during the 19th century? ये फातिमा, you can take it। इसमें आपका वेस्टर्न एजुकेशन वुड बी दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। उसके बाद हाउ एवर वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर आप बना लो 4 पैराग्राफ्स, ठीक है। अब इस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे? वेस्टर्न एजुकेशन वुड हैव 4 पैराग्राफ्स, फिर लिखो हाउ एवर अदर एफर्ट्स भी थे। फिर आप पॉलिटिकल पे 2 बना लो, एजुकेशन पे 2 बना लो। कितने हो गए? 4 2 2, 8 पैराग्राफ का आपका आंसर बन जाएगा। बेशक वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर 3 या 4 बना लेना। फिर लिखना हाउ एवर देर वर अदर एफर्ट्स एज वेल। 2 पैराग्राफ पॉलिटिकल के, 2 पैराग्राफ किसके? एजू नहीं, 2 पैराग्राफ अंडरस्टैंडिंग के, बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम, जो वो अच्छी की थी रिलेशंस। समझ आ गई? क्लियर है फातिमा? जी जी सर, ठीक ओके। हो गया। अच्छा नेक्स्ट, जैनब आपका है। Sir Syed Ahmad Khan's political beliefs had a greater impact on the Muslim than any of his other beliefs. Do you agree or disagree? पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएंगे, ठीक है। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के ऊपर यू कैन राइट 3 पैराग्राफ्स। 3 पैराग्राफ्स में आप क्या क्या लिखोगे? सेप्टर इलेक्टेड, डेमोक्रेसी सिस्टम, पॉलिटिकल जॉब्स, कंपेटिटिव एग्जामिनेशन खत्म करवाने की बात की थी। उसके बाद आप लिखो हाउ एवर देर वर अदर एफर्ट्स एज वेल। 2 पैराग्राफ बना लो आप रिलेशंस इंप्रूव करने पे, एक पे लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया, कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, दूसरे में वो नदारत वाला क्लियर कर देना, और तैयब तबय्युनुल कलाम। फिर 2 पैराग्राफ आप और बना लो वेस्टर्न एजुकेशन वाले एफर्ट्स के ऊपर, ठीक है। पहले 3 किसके ऊपर आ गए? पॉलिटिकल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये 2 रिलेशंस के ऊपर, और ये आखिरी 2 वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर। और कंक्लूजन में अब आपकी मर्जी है, आप अपने वाले के साथ ही एग्री करना चाहते हो तो यू कैन डू। जैनब क्लियर हो गया?
ओके जी, ठीक है, अपने अपने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लें, दैट इज ऑल फॉर टुडे। और इफ समवन वांट्स टू रीड दिस आंसर, ही मैंने अपलोड कर दिए हैं सर सैयद अहमद खान वाले, मैंने कल ही कर दिया था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ। इस आंसर को पूरा फिर मुझे ही बताना है ये मैंने किसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ था, मैं सवाल भूल गया। एंड गुड लक, एंड देन लेट मी नो योर आंसर, फिर मैं उनको चेक कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।